हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस यूपीएससी। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में आ गए हैं। आज मैं आपके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं कैग के ऑफिस को, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। The office of CAG is given under Article 148 to 151 of Indian Constitution. The appointment of office of CAG is done by President. Removal of CAG can be done in manner and grounds similar to Judge of Supreme Court. Now, how the Judge of Supreme Court is removed? With special majority, that is total membership plus 2/3 members present and voting. If this is achieved, then the CAG can be removed. Oath of the office of CAG is done before the President. The salary of the office of CAG is determined by Parliament by law and it is charged upon Consolidated Fund of India. As we discussed in the earlier video that charged upon Consolidated Fund of India का मतलब है कि पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं करता है. The tenure of this office is 6 years or the age of 65 years, whichever is earlier. The office of the CAG is not eligible for reappointment or further employment under Government of India or any state government. जो ऑफिस है CAG का वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट. नाउ वी कम टू ड्यूटीज ऑफ दिस ऑफिस. ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ CAG: ऑडिट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, कंटिजेंसी फंड ऑफ, public accounts of union, states and union territories with legislative assemblies. The important point to remember here is that it audits also the UTs which have the legislative assemblies and not the UTs which do not have legislative assemblies. All the trading, manufacturing, profit loss accounts of any department, also bodies, authorities substantially funded by union and state governments. सभी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर कोई बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो कि सब्सटेंशियली फंडेड हैं बाय यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट. और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर बोलता है CAG ऑफिस को कि हमें इस डिपार्टमेंट या इस मिनिस्ट्री का, इस अकाउंट का ऑडिट करना है, तब जाके CAG उसको भी ऑडिट कर सकता है. जनरली यूपीएससी ये नहीं पूछता है कि अभी ऑफिस ऑफ CAG किसके पास है, उसका नाम क्या है, तो ये हमें रटने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC. द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स. तो एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर मेंबर्स. अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट. टेन्योर ऑफ दिस ऑफिस इज डिटरमाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 338. अब जैसा कि आपको पता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी उसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जरूर मिलेगा. तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जिक्र आर्टिकल 338 के अंडर किया गया है. ड्यूटीज ऑफ दिस ऑफिस आर investigate, monitor all matters related to scheduled caste, inquiry, etc. Powers of civil court has been given to this commission. Summoning, evidence, affidavits collection, examination of witness, all these powers of civil courts are invested. All the powers of civil court are given to this National Commission for Scheduled Caste. Now, similar to this is National Commission for Scheduled Tribe. All the provisions that we discussed above for National Commission for Scheduled Caste are similar for the National Commission for Scheduled Tribe. Now, an important fact that is to be considered here is the recent amendment 102 Constitutional Amendment that National Commission for Backward Classes has been created under Article 338B. So this has to be remembered. अब हम चलते हैं next constitutional body के ऊपर. Commission on Official Language given under Article 344 of Indian Constitution. Under this, official language of Union shall be Hindi in Devanagari script. बहुत important article है कि भाई यूनियन की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में. सर्व वेरियस पर्पजेज फ्रॉम प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, restriction on use of English, language of courts, language of communication between states. So काफ़ी पर्पज सर्व करता है कि हमारी हिंदी का जो यूज़ है वो धीरे धीरे बढ़े. इंग्लिश के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या रहेगी और स्टेट्स में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या लैंग्वेज रहेगी.
30 मेंबर कमेटी इसके लिए बनाई गई है, जिसमें से 20 जो है मेंबर्स हैं वो लोकसभा से हैं और जो 10 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा से हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस प्रोसीजर के थ्रू इस कमेटी के मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं। इस कमेटी के बारे में जानकारी इतनी ही केवल काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपनी 5th कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज गिवन अंडर आर्टिकल 350B। दिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 29। Any section of citizens residing in Indian territory shall have right to conserve distinct culture, language, script of their own. So आर्टिकल 29 को एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, एडेड थ्रू 7th अमेंडमेंट 1956। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एडिट किया जाता है। जैसे कि अब ऊपर पढ़ा था हमने 102 सेकेंड अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऐड किया गया था। इसी तरह स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एडेड थ्रू 7th अमेंडमेंट इन द ईयर 1956। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन, that is on the 6th number in our list. It is given under Article 280 of Indian Constitution. The appointment is done by President every 5th year or as he thinks fit. 5 साल में इसका गठन होता है या फिर जब भी प्रेसिडेंट को फिट लगे। Members include chairperson plus 4 other members. Qualifications of Finance Commission is decided by parliamentary law. Duty of Finance Commission include horizontal plus vertical devolution of taxes. जो भी सेंटर यूनियन टैक्सेस कलेक्ट करता है पूरे साल में या फिर जैसे भी जिस भी सोर्सेज से, उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेवोल्यूशन विद इन स्टेट्स अमंग स्टेट्स कैसे किया जाए। करंट फाइनेंस कमीशन के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो अभी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है वो 15th फाइनेंस कमीशन थी, विच वॉज हेडेड बाय NK सिंह। अब की बार स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में एक 1+5 ईयर का पॉलिसी रिपोर्ट आएगी हमारे पास। फॉर दिस ईयर 2020 to 21 1 ईयर की पॉलिसी होगी और इसके बाद 2021 से 26 एक अलग फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट चलेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के अंडर याद रखने योग्य। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7th constitutional body in our list, Election Commission of India, which is given under Article 324 of Indian Constitution. Now this constitutional body also becomes an important part of our prelims preparation. Appointment of Chief Election Commissioner and such other election commissioner is done by President from time to time as he thinks fit. The chairman of Election Commission of India is the Chief Election Commissioner. Now पॉइंट टू बी रिमेंबर हेयर इज दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की पावर सेम होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेयरमैन है तो इलेक्शन कमिश्नर की पावर कम होती हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज डन लाइक मैनर एंड ऑन ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले हमने पढ़ा था CAG का ऑफिस भी इसी तरह से रिमूवल के अंडर आता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस भी रिमूवल जस्ट लाइक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। Any other election commissioner or regional commissioner shall not be removed except on recommendation of chief election commissioner. ठीक है, अब जैसे कि कोई और इलेक्शन कमिश्नर है या फिर रीजनल कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करेगा कि इसके रिमूवल को अलाउ नहीं करेगा, तब तक उसका रिमूवल नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं ड्यूटीज ऑफ दिस ऑफिस। Superintendence, direction, control of preparation of electoral rolls for and conduct of all elections to Parliament, Legislature of every state, offices of President and Vice President। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ड्यूटीज़ में हमने देखा कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सारा जो इसका जिम्मा होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के ऊपर होता है। Now we shall see some important facts about this office of Election Commissioner of India. The Constitution has neither specified the term nor the qualifications for this office. The courts cannot interfere in the matters which are related to delimitation or the allotment of seats, and during the conduct of an election, any court cannot interfere the process until the election process has been completed. All disputes that are related to the elections
are to be addressed after the declaration of final results in the respective high courts in case of assembly elections. Now एक important office है State Election Commission का. The State Election Commission is entirely a separate office from Election Commission of India. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन की पावर्स भी सेम है, तो ऐसा नहीं है. स्टेट इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल ही अलग ऑफिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से. स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़. तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में. अब एक कंसेप्ट है बाई इलेक्शंस का. बाई इलेक्शन कब होते हैं? जब किसी भी सीट पे वैकेंसी हो जाए किन्हीं भी दो कारण की वजह से. दो कारण कौन से हैं? या तो जो वहाँ पे पर्सन था उसने रेजिग्नेशन दे दिया है या फिर वो एक्सपायर हो गया है. तो ऐसे केस में बाई इलेक्शंस होते हैं. अब बाई इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इफ़ लेस देन 1 ईयर रिमेन्स फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन. अगर जो जनरल इलेक्शन है नेक्स्ट उसके लिए केवल 1 साल का ही वक्त बचा है तो ऐसे में इलेक्शन बाय इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम फालतू में रिसोर्स अपने वेस्ट करेंगे जब इलेक्शन होना ही है. अगर 1 साल से ज़्यादा का टर्म बचा होता है उस ऑफिस में तो वहाँ पे हम बाय इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं. इलेक्शन कमीशन डज नॉट सीम्स फिट दैट द सिचुएशन इज़ फिट फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एट पर्टिकुलर प्लेस. अगर इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को ये बोल दे कि अभी उस जगह इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए जा सकते, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन में इलेक्शंस या बाई इलेक्शंस नहीं होंगे. तो ये हमने आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, लगभग सारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसी तरह आपके लिए रिवीजन मॉड्यूल्स लाता रहूँ. थैंक यू वेरी मच.